Hello guys, me Subodh Kumar Mishra. Welcome back to my YouTube channel Paramount Vision. With the first step of learning English part 4. I am going to teach you today about alphabetical order or dictionary order. Dear guys, I have taught you what is a dictionary, what is an alphabet, how words are arranged, how words are formed. But today, I will teach you how words are written in dictionary, how words are arranged in the dictionary. At first, what is alphabetical order? What is dictionary order? The answer is words are arranged in dictionary according to their position in the alphabet. It is known as alphabetical order. As it is arranged, as words are arranged in dictionary in this order, it is also known as dictionary order. You must know how words are arranged in the dictionary. For this, you have to watch the examples carefully. Here 4 words are given, and you have been said to arrange these words in dictionary order. Okay? Any problem? So, look at the position. Look at the position of the word in the dictionary. The first, which letter comes the first in the dictionary, in the alphabet? B, R, A, N. Among these, A is the first letter. So, we have to write S first, then B. So, we write B. Now you have 2 words, nose and R. So N or R. Which letter comes first? N comes first. So nose is the first arrangement and last arrangement is rap. So it is the answer. It is the question. The question is arrange these words. The question is arrange these words in dictionary order or alphabetical order. Easily you can do it according to the position of letters in the alphabet. Second example, listen. Again 4 words are given. Again 4 words are given. Find the position. Find the order. B. After B, among these letters, first letter, you have, listen, you have to find only the first letter in these examples. B, then C, then E, and then G. It is our answer. But dear students, these are easy examples.
you can easily know A is first, then B, then N, then R. But if words are given of same letters, then look here, it is very interesting here. If words are given of same, all the words belong to family A, letter family A, then how you arrange it? Then leave the first letter. Then first letter is now useless for your arrangement here. The second letter is now the matter. P, S, N, U. Of course, N is first. So, it is arranged at the first. P, second. So, it is second. S, third. So, it is third. And final. So, if first letter is same, then search second letter. If first and second both letters are same, then search third letter. Third letter means the position of third letter. And then you can easily arrange it. So, my dear students, alphabetical order or dictionary order is the arrangement of words in the dictionary according to their position in the alphabet. The letters position and the words made for the letters. तो हम लोग देख लिए बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बहुत ही आसान है और ये एक गेम है। इसे फिर मैंने पिछले क्लास में भी बतलाया था आप लोगों को कि अगर आप खेल खेल में पढ़ेंगे ना तो इतनी मस्ती आएगी आपको पढ़ने में, इतना मजा आएगा कि आप नहीं कहोगे कि पढ़ाई बड़ा बोरिंग है। अक्सर बच्चों को लगता है ना, ओह सो बोरिंग यार, पढ़ो पढ़ो, मम्मा बोलती है पढ़ो, पापा बोलते हैं पढ़ो, टीचर्स बोलते हैं पढ़ो। बिल्कुल आपको पसंद ही नहीं आता, मुझे पता है। अभी आप बहुत गदगद है लॉकडाउन में कि चलो भाई स्कूल बंद है, नो क्लासेस, फन फन, ए लॉट ऑफ फन। माय डियर स्टूडेंट्स, बिना एजुकेशन का आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है और एजुकेशन को कभी आप बोझ मत समझो, इजी वे में लो, फन में लो। अब देखो मैं आपको फन मैंने दिया, लास्ट क्लास में मैंने बताया था वर्ड गेम खेलने के लिए आप अपने डैडी के साथ, अपने मम्मा के साथ खेल सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज्यादा इसमें इक्विपमेंट्स भी नहीं चाहिए। बस 3-4 डिक्शनरी घर में पॉकेट डिक्शनरी रखो, सारे फैमिली मेंबर के हाथ में दो। अब आज का जो गेम होगा आपका वो हो जाएगा वर्ड गेम दूसरा, पार्ट 2। वो वर्ड गेम क्या होगा, कहीं से भी अपने आसपास से 10 वर्ड उठा लिए। 10 वर्ड, अब कहोगे आसपास से मैं 10 वर्ड कहां से उठाऊंगा? अरे आप जहां बैठे हो वहां देखो ना, फैन है, बल्ब है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, कोई भी चीज लिख लिए। किचन देख रहे हो, ग्लास है, पॉटरीज है, फ्रिज है, कोई भी 10। आप पढ़ने बैठे हो, बुक देख लिए, बुक है, पेन है, कॉपी है, आपके पास कार्डबोर्ड है, हो गया। ये 4 मैंने लिखा, आप 10 लेटर लिख लिए, सॉरी 10 वर्ड्स लिख लिए, 10 वर्ड्स लिख लिए। आपके आसपास जो है लिखे, और नहीं भी लिखे तो सारे मेंबर, 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर घर में बैठे हुए हैं, पेपर और पेन लेकर। लेकिन फिर याद रखिए पेन सही नहीं होगा, पेपर, पेंसिल एंड इरेजर। और सबको बोल दीजिए कि देखिए इस घर में, इस रूम में 10 आर्टिकल्स हैं, 10 वस्तुएं हैं, कोई भी। आप लोग कौन पहले इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिख सकते हो?
इसको लिखने का, क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं। कोई भी 10 वस्तुओं को आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो। देखते हैं, कमॉन मामा, कमॉन डैडी, कमॉन चाचू, जो भी है, कमॉन भैया, दीदी, छोटी, जो भी आपके घर में है उसको बोल के और स्टार्ट कर देंगे। और जो पहले कर दिया सब लिख के रखा, अब फिर उसको आप डिक्शनरी से मैच करो, मिलाओ, उसमें जो विनर होगा वो विनर होगा और वो प्राइज का हकदार होगा। ही डिजर्व द प्राइज। और इस तरह से क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। इसको मैं कर देता हूं। ये बुक हो गया, ये क्वेश्चन में गए आंसर, ये बुक हो गया। फिर सी में, अब देखिए सी, यहां भी सेकंड लेटर जाएंगे, ए पहले तो कार्डबोर्ड, फिर आ जाएंगे कॉपी और लास्ट में आ गए पेन। दैट्स ऑल। सो वेरी इजी डियर। अगर आप पढ़ाई को मस्ती में लोगे ना तो सीख भी जाओगे और ये खेलने का, टाइम बिताने का बहुत अच्छा जरिया आपके लिए बीतेगा। आई होप आपको बहुत बहुत एडवांटेजेस मेरे क्लासेस से मिल रहे होंगे। और मैं आज कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप कमेंट के रूप में उसको आंसर 1-2 ही दे रहा हूं, अरेंज करके कमेंट के रूप में आप डालेंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको कुछ फायदा हुआ। मैं 1 या 2 दे देता हूं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट जिसे भी लेने का मन है वो ले सकते हैं। कंटेंट्स में डाल दूंगा, वो आप इससे निकाल सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं दे दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर मैं एक बार बताऊंगा आप लोगों को, प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें दे सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। My only aim is to provide dear students a lot of opportunity to learn English with fun, not as boredom, not as burden, full with fun. और मैं चाहता हूं कि गार्जियन को भी लगे कि हाँ आप उनके बच्चों को एक ऐसा माहौल पढ़ाई का मिल रहा है जिसमें वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कर रहा है, मस्ती कर रहा है, आपको भी इन्वॉल्व कर रहा है, आपको भी खुशी होगी। ओके, सो मैं वर्क दे देता हूं, सिर्फ दो दूंगा आपको, इसे बना के और कमेंट में भेजना है। 2 को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। एक और 2। ओके, आई होप आप जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।